Good morning all. Today we discuss the tree sort or heap sort. Tree sort is one of the important sorting technique. In that tree sort is one of the balanced binary tree. For tree sort or the heap sort, every it is a one type of the balanced binary tree, means every time the root is compared with its all children's the if the root is greater than all children, then it is called as max heap. Okay, and if the root is less than all children, less than or equal to less than or equal to children, then it is called as mean heap, or it generates the mean heap. See, first of all, you understand the concept of tree sort. Tree sort means what? You are given the number of elements, array elements, then you have to just build the tree. At the first step, you have to build the heap. Heap means you just build the balanced binary tree. At the second step, you have to just compare the root node with its all children. If the root node is greater than all the children, then it creates the max heap. And if the parent means the root is less than or equal to children, here you use the term root or the parent, because root is generally for each and every tree there is only one root. Okay, then the number of children. Okay, but every time you have to compare the parent with all its children. You use here the root or parent. Okay, because for root there is the only one node for each and every node, which is at the top level node. This is called as a root. So every time you have to check whether the parent is greater than all its children, and if it is greater, then again go to the next level, again you check if it is greater than all its children, then again you go to the next level, and if it is not greater, then you just exchange the values. Suppose you compare this parent with all its children, and if this parent is less than this particular node, then you just swap it. If the parent node is not greater, in case of max heap, then you just swap the both elements, and it creates the concept of max heap. When exactly reverse in case of the mean heap, root is less than or equal to children, then it generates the mean heap. Means the first of all the root is compared with its children. If the root is less than or equal to, then no problem. But if the root is greater, in case of the mean heap, then you just exchange with its children, and similarly you do the same process for all the nodes, and it creates the mean heap. So you have to remember only the two terms, max heap and mean heap. Max heap means what? The parent node is always greater than its children. In case of the mean heap, the parent node is less than or equal to all its children, and therefore it is called as the mean heap. Okay, let us today we discuss this concept with one of the video. That video is in Hindi. First you understand the concept with the suitable example, then again I will comment on it.
तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है। आपको पता है सॉर्टिंग जब हम कोई लिस्ट हमें दी गई है, नंबर लिस्ट हो सकती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो सकती है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो A to Z हमें सॉर्टिंग करना है, ABCD, पहले A आए फिर B आए फिर इस तरीके से, या फिर Z to A सॉर्टिंग करना है। यदि हमें नंबर लिस्ट दी गई है तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, या घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना रहती है। तो ये सॉर्टिंग कहलाती है। जब हमें कोई एरे दिया गया है, रैंडम वैल्यू उसमें स्टोर है और उसे हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इस प्रोसेस को हम सॉर्टिंग कहते हैं। अब सबसे पहले हम अपनी सॉर्टिंग में देखने वाले हैं हीप सॉर्ट, क्योंकि एक जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि हीप एक जो है ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है। तो ट्री की ही हम आगे श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इस सॉर्ट को देख रहे हैं, हीप सॉर्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हीप सॉर्ट। इसके पहले आपको हीप का कॉन्सेप्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो आप अच्छे से देख लीजिए, क्लियर होना चाहिए। तो आइए समझते हैं हीप सॉर्ट के बारे में। मैंने इसकी स्टेप्स यहाँ पर लिख ली हैं, आपको ये स्टेप्स याद होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें गिवन लिस्ट है, हमें एक लिस्ट दी गई होगी, एरे दिया गया होगा, इससे हमें एक हीप फॉर्म करना है। हीप जो ट्री बेस्ड हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो हम फॉर्म करेंगे। जैसा कि हमने बताया था आपको कि जो हीप होता है, सबसे पहले उसकी एसेंशियल कंडीशन क्या होती है कि वो एक ऑलमोस्ट कंप्लीट या कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्म करते हुए इसी बात का ध्यान रखेंगे कि जो हम नोड इंसर्ट करते जा रहे हैं, नोड बनाते जा रहे हैं, वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की क्वालिटी को मेंटेन करके रखे। और फिर हम देखेंगे कि जो हमारी हीप की प्रॉपर्टी थी कि रूट नोड जो है उसमें जो लार्जेस्ट की वैल्यू है, अभी हम मैक्स हीप पे ही वर्क कर रहे हैं, तो लार्जेस्ट जो की वैल्यू है वो रहेगी और उसके जो चिल्ड्रन है उसमें रूट नोड से कम वाली वैल्यू रहेगी। तो इस प्रॉपर्टी को हमें मेंटेन करते हुए एक हीप डेटा स्ट्रक्चर, हीप ट्री हमें फॉर्म करना है। फिर हमें क्या करना है, रिमूव द रूट नोड एंड प्लेस द लास्ट नोड एट रूट नोड। हम क्या करते जाएंगे, हमारे पास सबसे ऊपर क्या आता जाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट आता जाएगा, तो हम क्या करते जाएंगे, इसको रिमूव करते जाएंगे और इसको एक अलग एरे में हम क्या करेंगे, स्टोर कराते जाएंगे। तो ये क्या होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी लिस्ट हमें मिल जाएगी 100, या फिर उससे बड़ा थोड़ा छोटा वाला पेरेंट आ जाएगा, रूट नोड बन जाएगा, तो वो हम निकाल के एक एरे में स्टोर करते जाएंगे। तो ये रिकर्सिवली हम करते जाएंगे। लेकिन जब हम ये करते जाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम काम कर रहे हैं हीप पे, तो हमारा जो ट्री है वो हीप की क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करे। यदि आप इस रूट नोड को निकाल लेते हैं तो फिर इस रूट नोड पे क्या आएगा, कौन सी की वैल्यू आएगी, उसको आपको लाने के लिए क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, हीपिफिकेशन। जो आप इंटरचेंज करेंगे रूट नोड की वैल्यू और आपकी जो लास्ट नोड की वैल्यू है, उसको आपस में आप क्या करेंगे, लास्ट नोड को लेकर आएंगे। अभी हम पूरी प्रोसेस अच्छे से देखने वाले हैं। तो लास्ट नोड की वैल्यू को हम क्या करेंगे, रूट नोड पर लेकर आ जाएंगे और फिर से हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारा बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंटेन रहे और हीप की जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहे। तो रिपीट स्टेप 2 फॉर अंटिल वी रीच एट लास्ट नोड एंड क्रिएट एरे फॉर रिमूव्ड रूट नोड। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस रहेगी। See, the first step you have to construct the heap first. Heap means tree. If you have given the number of elements in the array, then first of all you have to create the tree, that is called as the heap. And at the time of creating this heap, you just remember that tree becomes the complete binary tree with the heap property. What is the heap property? Heap property काय असेल तर मी आता जे तुम्हाला सांगितलंय तर ती मॅक्स हीप असेल किंवा मिन हीप असेल। या व्हिडिओमध्ये आपण मॅक्स हीप बघतोय। मॅक्स हीप मध्ये काय असतं की जो लार्जेस्ट रूट असतो, जी लार्जेस्ट व्हॅल्यू असते ती रूटला असते, तिला म्हणतात मॅक्स हीप। आणि मिन हीप म्हणजे काय की जी सगळ्यात लेस व्हॅल्यू असते ती मेन रूटला असते, म्हणजे ती झाली मीन हीपची प्रॉपर्टी। सो इन दिस केस द फर्स्ट स्टेप, हीप प्रॉपर्टी मीन्स यू हॅव टू रिमेंबर द मॅक्स हीप और द मीन हीप अकॉर्डिंग टू युअर टास्क। म्हणजे तुम्ही काय करताय, मॅक्स हीप करताय का मीन हीप करताय हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे आणि त्याच्याप्रमाणे ती प्रॉपर्टी यूज करायची आहे। नंतर सेकंड स्टेप मध्ये काय करतोय आपण की एकदा ट्री तुमची बिल्ड झाली की नंतर जो रूट नोड असेल त्याला रिमूव्ह करतो आणि ह्या रूट नोडला जर मी रिमूव्ह केलं आणि समजा हा लास्ट नोड आहे
तर याला मी रिमूव्ह करून ऍरे मध्ये प्लेस करेल आणि हा जो लास्ट नोड असेल याला मी रूटच्या ठिकाणी ठेवेल. याला रूटच्या ठिकाणी ठेवल्यानंतर पुन्हा मला हीप प्रॉपर्टी चेक करावी लागेल की आपला जो मॅक्स हीपचा रूल आहे तो डिस्टर्ब व्हायला नको. म्हणजे इथून याला इथे ठेवलं तर मग हा एलिमेंट ग्रेटरच असायला पाहिजे सगळ्या एलिमेंट्स पेक्षा. हा जर लेस असेल तर तुम्हाला हिपिफिकेशन करावं लागेल. हिपिफिकेशन म्हणजे काय की स्वॅपिंग करावं लागेल. समजा मी याला डिलीट केलं आणि इथे ठेवलं, पण हा जर नंबर लेस असेल या नोड पेक्षा तर हा नोड तुम्हाला वरती रिप्लेस करावा लागेल आणि म्हणजे हिपिफिकेशन करावं लागेल. आणि अकॉर्डिंगली यू रिबिल्ड अगेन द हीप ट्री. ओके, ही प्रोसेस तुम्हाला कुठपर्यंत करायची आहे की जोपर्यंत तुमचा एलिमेंट जो असेल तो शेवटचा एलिमेंट तिथे रीच होत नाही तोपर्यंत, आणि सायमल्टेनियसली तिकडे ऍरे क्रिएट होईल. ओके, कंटिन्यू. हीप सॉर्टिंग की, ठीक है, तो हमने इसको अपने शब्दों में लिखा है यहाँ हीप सॉर्टिंग को. इसी स्टेप को ध्यान में रखते हुए अब हम परफॉर्म करते हैं हमारा हीप सॉर्ट. सपोज हमें कोई नंबर लिस्ट दी गई है, एक एरे दिया गया है, $50, $40, $10, $60 रैंडम कोई वैल्यू ले रही हूं मैं यहाँ पे 70, ठीक है, इतने सफिशिएंट है. तो यहाँ पर हमने रैंडम वैल्यू ले ली है. फिर हम इसको हीप सॉर्टिंग के द्वारा अब सॉर्ट करने वाले हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया, आपको कंस्ट्रक्ट हीप स्टेप 1 था हमारा, कंस्ट्रक्ट हीप. जब आप हीप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप सबसे पहले ये नोड को रखेंगे, ठीक है, यहाँ आ गया नोड, ठीक. तो आपको क्या ध्यान देना है कि बाइनरी ट्री बन रहा है, कंप्लीट बाइनरी ट्री बन रहा है कि नहीं. जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब दूसरा नोड जो आएगा वो यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा. तो हमें पता है कंप्लीट बाइनरी ट्री और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो नोड होते हैं वो एज फार एज लेफ्ट होते हैं, मतलब कि लेफ्ट की तरफ से ही हमें हमेशा इंसर्शन परफॉर्म करना है. तो नया नोड जो आ रहा है 40, उसको हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर. साथ में हमें ये भी चेक करते चलना है कि हमारा जो हीप प्रॉपर्टी है वो मेंटेन है या नहीं. हमें पता है हीप प्रॉपर्टी में जो पेरेंट नोड है, रूट नोड है, वो उसकी की वैल्यू जो है ग्रेटर होती है अपने अभी तो हमारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है पेरेंट नोड की चाइल्ड नोड से, तो हमें इसे इंटरचेंज करने की, हिपिफिकेशन करने की आवश्यकता भी नहीं है. नेक्स्ट नोड को इंटर करते हैं 10. यहाँ पर हम कर रहे हैं 10 को इंसर्ट. अभी भी हमने जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है अभी हम यहाँ इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ इंसर्ट करेंगे तो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है लास्ट लेवल के जो ऊपर लेवल होते हैं वो पूरी तरह फिल होते हैं. बघा, फर्स्ट 3 नोड कसे इन्सर्ट केले. फर्स्ट नोड हा 50 होता म्हणून तो आपण टॉपला ठेवला, रूटला ठेवला. देन द नेक्स्ट नोड इज 40 हा कंप्लीट बायनरी ट्रीच्या रूल प्रमाणे सेकंड नोड जो असेल तो तुमचा लेफ्टला येईल. त्याच्यानंतर थर्ड जो नोड असेल तो राईटला फिलअप होईल. नंतर पुढचा जो नोड आहे आता 60, तो 60 हा पुन्हा नेक्स्ट लेवलला लेफ्टला येईल. पण हे करत असताना प्रत्येक वेळेला तुम्हाला चेक करायचंय की हा पॅरेंट नोड त्याच्या चिल्ड्रन पेक्षा ग्रेटर आहे किंवा नाही. तर हिअर द 50 इज ग्रेटर दॅन दी 40 अँड 10. So there is no need to exchange the value. There is no need to hipification. But now there is a need if you insert a next element 60 at this left position. Continue. कंप्लीट बाइनरी ट्री में, ठीक है. तो यहाँ पर हम 10 को कहाँ इंसर्ट करेंगे, राइट में. इसके बाद हम आते हैं हिपिफिकेशन की जो मेथड है उसे परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो रूट नोड है उसमें ग्रेटर वैल्यू है. इसके बाद हम आते हैं हमारे अगली वैल्यू पर 60. अब 60 यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, जैसा कि हमने बताया आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. अगर आपको पता है कंप्लीट बाइनरी ट्री ये हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री ये हो गया, ठीक है. तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट से परफॉर्म करेंगे. 60 हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा. अब देखिए आप, ये जो चाइल्ड है ये पेरेंट से बड़ा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी मैक्स हीप की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा. यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 को लेकर आ जाएंगे और यहाँ पर हम किसको लेकर आ जाएंगे, 40 को लेकर आ जाएंगे,
ठीक है, यहाँ पर हम 60 को लेकर आते हैं और यहाँ हम 40 को लेकर आते हैं। अब फिर हम कंपेयर करते हैं, इसका जो पेरेंट है अब ये हो गया, तो क्या इसके पेरेंट की वैल्यू इससे चाइल्ड से ज्यादा है? हम देख रहे हैं कि नहीं, चाइल्ड की वैल्यू इसमें की वैल्यू ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इंटरचेंज परफॉर्म करेंगे। इंटरचेंज परफॉर्म किया तो यहाँ पर आ गया 60 और यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हम, हमारा जो हीप की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर बकायदा मेंटेन हो रही है, राइट। तो अब हम आते हैं अपने अगले एलिमेंट पे। 60 को हमने कर लिया था, अब हम आते हैं 30 पे। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे 30। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी की प्रॉपर्टी हमें मेंटेन करना है। यहाँ पर हमने 30 प्लेस कर दिया। देख रहे हैं हीपिफिकेशन की आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट नोड की वैल्यू अपने चाइल्ड से बड़ी है। फिर आते हैं 70 पे। तो 70 अब यहाँ पर तो लगाऊंगी नहीं मैं, पहले मुझे ये फिल करना होगा, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी 70 को, राइट। लेकिन यहाँ देख रहे हैं फिर से 70 वैल्यू बड़ी है, 10 छोटा है, तो हीपिफिकेशन की आवश्यकता, हीपिफाई करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम कर देते हैं 70, यहाँ पर कर देते हैं 10। ठीक है, और उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि 70 बड़ा है अपने पेरेंट नोट 60 से, तो फिर से इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 70 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 60। तो ये हमने अपनी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमें हीप बनाना था, हीप ट्री बनाना था। तो ये हमारा हीप ट्री अब बन चुका है। अब हमें स्टेप 2 का, इथे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट झाली आहे। फर्स्ट स्टेपला आपल्याला काय करायचं होतं, कन्स्ट्रक्ट हीप। हीप आपण तयार केलंय, म्हणजे ट्री तयार केली आहे, पण ती ट्री तयार करत असताना आपण कोणत्या प्रकारचं हीप सॉर्टिंग करतोय, मॅक्स हीप करतोय का मीन हीप करतोय, त्याची प्रॉपर्टी आपल्याला मेंटेन करायची आहे। या एक्झाम्पलच्या थ्रू आपण मॅक्स हीप जनरेट करतोय आणि मॅक्स हीप जनरेट करतो म्हणजे प्रत्येक वेळेला त्याच्या पॅरेंटची जी व्हॅल्यू असेल, सी तर पॅरेंटची व्हॅल्यू त्याच्या चिल्ड्रन पेक्षा ग्रेटर असायला पाहिजे। सी हियर द 70 इज ग्रेटर दॅन बोथ द चिल्ड्रन्स 50 60, अगेन 50 इज ग्रेटर दॅन 40 and 30, and here the 60 is greater than the 10. So this is the construction of heap. Now at the second step, you see that how to remove the root node and replace it with the last node to get the array, to get the array, sorted array. As it is the max heap, this max heap creates the all elements in the descending order. Means the greatest element is first, then next greatest, then next greatest, so like that. Means it creates the all elements in a descending order. Continue. करना है। स्टेप 2 में हम क्या देखते हैं, इसको मैं एरे रिप्रेजेंटेशन पहले कर लेती हूँ। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो 1 पे क्या है, 70, 50, 60, 40, 30, 10। हमारी स्टेप 2 में हमें क्या करना है, रिमूव रूट नोड और उसे प्लेस कर देना है अपना। सपोज यहाँ पे हमारे और सीक्वेंस है, मेमोरी अरेंजमेंट है, यहाँ तक हमारा n हो गया, तो यहाँ हम इसको 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ n हमारा खत्म हो जाता है हीप। तो यहाँ के बाद हम n+1 पे या n+2 पे अपना एक और एरे बना लेंगे और यहाँ पर हम किससे प्लेस कर देंगे, रूट नोड को प्लेस कर देंगे। ठीक है, आप n+1 पे कर सकते हैं, n+2 पे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, हमने प्लेस कर दिया हमारे 70 को। अब मैंने आपको बताया था जैसे ही आप 70 को रिमूव करते हैं तो यहाँ की वैल्यू अब क्या होगी, यहाँ पे आपने क्या किया, 70 को रिमूव कर दिया। अब ये की वैल्यू चली गई यहाँ से और आपका ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा है, 50, 60, 40, 30 और ये 10। ठीक है, अब यहाँ पर कौन आएगा,
तो हमें क्या करना है, लास्ट का जो नोड की वैल्यू है उसे यहाँ पर रखना है। लास्ट का नोड कौन सा है, 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आप 10, ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाएगी। और अब क्या होगा, हमें परफॉर्म करना पड़ेगा हीपिफिकेशन। हीपिफिकेशन ये कहता है कि भाई अगर आपकी हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसे पहले हीप पर लेकर आएंगे। See here, this node 60 is greater than the parent node 10 and hence here the heapification is required. म्हणजे तुम्हाला इथे हीप प्रॉपर्टी मेंटेन करावी लागणार आहे, कारण 60 हा चाइल्ड आहे आणि 10 हा त्याचा पॅरेंट आहे. म्हणजे पॅरेंट पेक्षा त्याचा हा नोड ग्रेटर आलाय. सो यू हॅव टू एक्सचेंज बोथ दी, मीन्स यू हॅव टू कीप दिस 60 एट द प्लेस ऑफ 10. कंटिन्यू. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको फिर से हीप बनाएंगे। यहाँ परफॉर्म करेंगे हीपिफिकेशन। हीपिफिकेशन के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो रूट नोड है, ठीक है, वो उसमें वैल्यू कम है और ये जो इसका चाइल्ड नोड है इसमें वैल्यू ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक्सचेंज कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से रूट नोड को निकालेंगे। रूट नोड हमारा 60 है, उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको प्लेस करने के बाद फिर जो लास्ट नोड होगा उसको यहाँ पर लेके आ जाएंगे। लास्ट नोड 30 है, तो 30 को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं और इसके बाद ये हो गया 50। इथे लास्ट नोड कसा ओळखायचा आहे, तर लास्ट नोड साठी आपण जो हा ऍरे वरती बिल्ड केलाय, तर ऍरे वरनं तुम्ही लास्ट नोड बघू शकतात. बघा, लास्ट नोड आधी 6 प्लेसला 10 होता, नंतर आपण 10 ला तिथून काढून त्याच्या वेगळ्या प्लेसला टाकलंय. सो नेक्स्ट लास्ट नोड इज 5th नोड. सो 5th नोड मीन्स 30. Likewise, you can go at the previous node by keeping the track of the array element position. Then the next last node is 4. Then the next last node is 3. So like that, you can just remove the last node. You can just see the position of the array elements in the array for the last node. और ये हो गया 40, ठीक है, ये है आपका 10। राइट, तो यहाँ पर आपका ये 40 है, आप 30 को यहाँ ले गए हैं, यहाँ कॉपी कर दिया आपने। फिर इसके बाद हीपिफिकेशन की आपको फिर से जरूरत है। यहाँ पर ये 50 है, ये हमारा जो रूट नोड है 30 इससे ग्रेटर वैल्यू है, तो इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। पुन्हा इथे लक्षात घ्या की सेकंड स्टेपला आल्यानंतर इथे रूट काय होता, 60 होता आणि लास्ट नोड काय होता, कारण लास्ट नोड आपण पहिल्या स्टेपला 10 घेतला होता, त्याच्या आधीचा नोड काय आहे 30. मग हा जो रूट नोड आहे याला रिमूव्ह करत जायचं आणि ह्या सेकंड ऍरे मध्ये ठेवायचं. बघा, सुरुवातीला आपला जो मेन रूट होता 70, त्याला रिमूव्ह करून इथे ठेवलं. त्यावेळेला लास्ट नोड काय होता, 6 नंबरला 10 होता, तर 10 ला आपण त्याच्या रूटच्या प्लेसला एक्सचेंज केलं. आता सेकंड स्टेपला काय झालं की 60 रूटला आला, पण तुमचा पुढचा लास्ट नोड कोणता आहे, 5th पोझिशनला 30, म्हणून मग या 60 ला इथे रिमूव्ह करून सेकंड ऍरे मध्ये ठेवलं आणि तो जो लास्ट नोड 30 आहे त्याला इथे रूटच्या प्लेसला बघा इथे ठेवलं. मग इथे प्लेस केल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला हीपिफिकेशनची प्रॉपर्टी चेक करायची आहे की हा जो आपण नव्याने इथे लास्ट नोड टाकला हा ग्रेटर आहे का त्याच्या चिल्ड्रन पेक्षा. तर इथे या सिच्युएशन मध्ये तर नाही, कारण की 50 इज ग्रेटर दॅन द 30 and therefore it requires the concept of heapification, and so you just exchange the values. Continue. इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास फिर से एक हीप आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 40, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर भी जो रूट नोड है, मतलब पेरेंट नोड है 30, उसकी वैल्यू कम है, तो आपस में इसको भी हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो ये 30 अब क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 30। ओके,
तो आपको हीपिफिकेशन मेंटेन करते हुए चलना है, और एक एक जब आप हीप पूरा बना लेंगे तो उस पर्टिकुलर रूट नोड को आपको निकाल के एक अगले जो एरे में आप जो बना रहे हैं n+1 से n+2 से, उस पे आप क्या करते जाएंगे, प्लेस करते जाएंगे। जनरली जो कस्टम है वो n+1 से बनाने का है, तो हम भी यहाँ पे n+1 ही ले लेते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप एल्गोरिथम अगर कहीं देखेंगे तो आपको n+1 ही दिखेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 को कॉपी कर लेंगे, रिमूव करेंगे, और 50 को यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे। 50 को हमने रिमूव कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, लास्ट नोड फिर से क्या है, 30, उसको कहाँ पर लेके आना है, रूट नोड में। तो यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, लास्ट नोड 30 है, यहाँ पर हो गया 40, ये तो हट गया, ये हो गया हमारा 10, राइट। अब फिर 30 को निकालेंगे और 30 को यहाँ कॉपी कर देंगे, ठीक है। 30 को निकाल लिया आपने, 30 को, सॉरी, हीपिफिकेशन परफॉर्म नहीं किया हमने, तो यहाँ पर हमने हीपिफिकेशन परफॉर्म नहीं किया, इसलिए हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो हम यहाँ पर हीपिफिकेशन परफॉर्म करते चलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 30, ठीक है। हीपिफिकेशन परफॉर्म करते चलेंगे तभी हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये हमने क्या करा, 40 को फिर रिमूव कर लिया रूट नोड को, और यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब 40 को रिमूव कर दिया तो मैंने आपसे कहा था कि लास्ट नोड की 40 को जब आप रिमूव कर देंगे तो आपके पास 30 और 10 दो नोड रह जाएंगे। तो आपका लास्ट नोड कौन सा कहलाएगा 10। तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 30। अगेन फिर हमको हीपिफिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 30 को फिर यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और बचेगा हमारे पास 10 जो कि अपने आप में रूट नोड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, रूट नोड को हटा के फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें 70, 50, 60, 40, 30, 10 ये जो हमारी गिवन लिस्ट थी, इसकी सॉर्टिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ n+1 से 70, 60, 50, 40, 30, 10 सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे बड़े एलिमेंट को हीप लेकर आइए, रूट नोड पे हीप बना रहे हैं क्योंकि, और उस रूट नोड को क्या करेंगे, निकालते जाएंगे, नए एरे में रखते जाएंगे। अब बात होती है कि जो रूट नोड है उसकी जगह पर कौन सा नोड आएगा। तो लास्ट नोड को आपको कॉपी करना है रूट नोड की प्लेस पे। उसके बाद चूंकि लास्ट नोड जो है उसकी वैल्यू कम या ज्यादा कुछ भी हो सकती है, तो आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, हीपिफिकेशन। हो सकता है हीपिफिकेशन नहीं भी परफॉर्म करना पड़े, हो सकता है करना भी पड़े। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने जो नोड कॉपी किया है, जो रूट पे आया है, उसकी वैल्यू अपने चिल्ड्रन से बड़ी है या नहीं। यदि नहीं बड़ी होती है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। आपको बस see after the end of this heap sort or tree sort, you have the sorted array. As it is the max heap tree, then you will get all the elements in a descending order. म्हणजे जर मॅक्स हीपची प्रॉपर्टी तुम्ही अप्लाय करत असाल तर ग्रेटेस्ट एलिमेंट हा तुम्हाला इथे मिळतोय, त्याच्यानंतर नेक्स्ट ग्रेटेस्ट अँड देन ऍट द लास्ट पोझिशन यू विल गेट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. बट इफ यू रिव्हर्स this heapification property, means if you apply the mean heap property, then you will get the array in a ascending order, means 10, 30, 40, 50, 60 and then 70. So at the second step, always you have to remember the last element from the newly created array, or it's a very simple, instead of look at the first array position, you just look the positions from the newly built tree. Suppose this is a 1 position, then this is 2, then 3, and then this is the 4th position. So the last element is 40. So here we add the element 40, but the root is less than the 50. Then once again here the heapification is done. Again, if you don't know which is the last node, then again you just numbering the tree 1, then 2, then 3, and then 4. So you just
keep the last node at the root position 30 here, but again 30 is less than the 40, then again the epification is required. म्हणून पुन्हा काय केलं की या 40 ला पुन्हा वर आणलं आणि 30 ला इथे ठेवलं. पुन्हा 1 2 3 म्हणजे लास्ट नोड कोणता आला, 3 लास्ट नोड आला. 3 ला काय व्हॅल्यू आहे 10, म्हणून मग रूटला आपण 40 ला रिमूव्ह केलं आणि इथे 10 ला लास्ट नोडला आपण रूटच्या पोझिशनला ठेवलं. वन्स अगेन दिस इज 1 2, लास्ट नोड इज 2 मीन्स 30, म्हणून त्या लास्ट नोडला आपण रूटला ठेवलंय. ओके, आता इथे ही प्रॉपर्टी ट्रू आहे. दिस इज 30 इज ग्रेटर दॅन द चिल्ड्रन, सो the hippification property is satisfied. But according to our rule, we remove the root, so 30 will get removed and only one element is remaining, so that's why here